जैसा तुम सिद्धाय नमः। आज जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, आज के दिन कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो श्री सत्य साहिब स्वामी सत्येंद्र जी महाराज से इसके उपलक्ष्य में कुछ आप पूछना चाहें या जो भी आपके मन में सवाल है तो वो क्या होंगे? मैं अर्चना गुप्ता, योगा टीचर, फरीदाबाद से आई हूँ यहाँ स्वामी जी के पास। मैं फरीदाबाद में अपनी योगा क्लासेस लेती हूँ और दिल्ली में आर के पुरम स्टूडियो R2R विरसा से अपनी ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ वीक में एक बार। वो ऑनलाइन क्लासेस हर शुक्रवार केंद्रीय विद्यालय में प्रसारित की जाती हैं। तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य, और मैं योग को एक प्रैक्टिकल वे में देखती हूँ। तो मैं स्वामी जी के जो व्यूज हैं धर्म ग्रंथों के बारे में, और जो भी मैं उनके प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। उनके जो भी वीडियोस हैं वो बहुत साइंटिफिकली डेली यूज में आने वाली चीजों पर आधारित है। उसमें ऐसी कोई भी काल्पनिक चीजें नहीं है जिसको आप कोरिलेट नहीं कर सकते। स्वामी जी से गीता के बारे में कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त करना है जिसे मैं आगे बच्चों को प्रदान कर सकूं, जिसको पाकर बच्चे अपनी जिंदगी में सफलता पूर्वक आगे बढ़ सकें। थैंक यू। Jai Satyom Siddhaya Namah. Good evening everyone. I am Savita Malik, practicing gynecologist in Faridabad from last 15 years, and I've been into the spiritual learning from last 15 years or so, and I've been reading many books regarding the literature about all the learned philosophers and writers relating to meditations and spiritual practices. So I've been associated with Swami Satyendra Singh from last 5-6 years, and I've learned I've learned many things from him, and basically the technique of meditation and the process, like from how we should meditate, and besides other, like I've been studying Gita from last years or so, and from many writers I've studied, but I could not get real knowledge. But through Swami Satyendra ji I have learned the practical things which we should apply in our life, because Janmashtami Utsav is being celebrated today. So I just wanted some question was there regarding, like, we are worshipping Krishna and Radha in all our temples, and we always see the pictures of Radha Krishna depicted in the posters, in books, and also in all temples. But according to his theory, what he explains, that there are chromosome X and Y which exist in every male person. What he implies is that through Radha Krishna he has the female part which is Radha, and this theory I think is best proved by the Radha Krishna pair, because individually if we consider Krishna ji, he is a male person, but his wife was Rukmani, who is never mentioned in any, like she is mentioned in the Vedas, but she is never depicted with him in any temple. There is never any picture we see publicly that she is sitting along with Krishna ji. So makes a question like, what is the significance of Radha with Krishna ji? This question keeps on getting in other person's mind also, because according to our religion, the person is always accompanied by his wife, and he is always shown socially among the public, and he is respected in such a way that if he is with his wife, he is more respectable. But we see in Krishna ji, he is always seen with Radha, who is explained as the lover of Krishna. But they are not two individuals separately. They exist simultaneously. It's only as a whole, it's one person, like X and Y chromosome. If they exist in a single person, then there is a female factor also in a male factor. This depicts that. I just wanted to ask Swamiji regarding is this theory which he explained, is this applicable on Radha Krishna? Thank you. सप्तम सिद्धांत में आज जैसे कि जन्माष्टमी का पर्व है, और उस पर अभी हमारे बहुत सारे भक्तों ने कृष्ण जी के विषय में प्रश्न करा कि भाई कृष्ण जी जो है कि जन्म को लेकर, और उनका जो राधा कृष्ण प्रसंग है युवावस्था का, फिर शैक्षिक काल है उनका, फिर उसके बाद में गीता उनका मूल प्रधान है, और उसमें श्रीमद् भागवत मूल ग्रंथ इस समय सबसे सर्वाधिक प्रचलित है। तो शुष्क रूप के रूप में तो गीता है, और लेकिन अगर हम उसका रसिक भाव देखेंगे तो वो जो प्रचलन में है श्रीमद् भागवत है। अब श्रीमद् भागवत का प्रश्न होता है,
तो वहाँ पे क्या है कि वेद व्यास जो थे उन्होंने वेद लिखे। उनका कहना यह है कि वेद व्यास ने वेद लिखे, वेद वैसे लिखे नहीं गए, वेद तो बहुत प्राचीन है, उन्होंने संकलन करा। संकलन करने के उपरांत में उन्होंने और अन्य ग्रंथों का, जैसे तुम्हारा पुराण है, इनका भी संकलन करा और इन्हें अपने दैनिक अनुभव और जो जीवन में लोगों के अनुभव हैं उनके आधार पर सरलता से वैदिक धर्म को समझाने का प्रयास करा। और उसके समझाने में फिर उन्हें जो एक अरुचि उत्पन्न हो गई, जैसा कि उनका कहना है, और उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत का गठन करा, लेखन करा। गठन क्या करते हैं, संकलन करा, वो लिखा उसे, और उससे उनकी अंदर की भक्ति का प्रधानता आई, शुष्कता समाप्त हुई, उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति में रस आया और उन्हें एक प्रकार का जो आत्मोक्ष में जो प्रसन्न आता है शांति का, और उन्हें जो आनंद की अनुभूति होती है वो उन्हें प्राप्त हुई। अब यहाँ बड़ा विरोधाभासी सवाल हो जाता है कि जो वेद सर्वाधिक सर्वोच्च अवस्था को प्रकट करते हैं उनमें उन्हें अरुचि हो गई, और अरुचि होने में उनमें तो खुद में ही भक्ति बहुत है, बहुत सी लिखा हुआ है, गायत्री वगैरह सारी चीजें, तो ये विरोध हो जाता है। ऐसा जैसे कि श्रीमद् भागवत के मतलब के कंपैरिजन में वो जो है वेद नथिंग, मतलब वेद नथिंग है, श्रीमद् भागवत वेदों का और ऊंचा सार है, तो ये तो फिर विवादस्त हो जाती है चीज। लेकिन यहाँ ये ऐसा प्रसंग है कि जो बीच के लोगों ने जरूर इसमें, जैसे उन्होंने संकलित करा ऐसे ही इन्होंने अपने अपने कथनों के अनुसार संकलित करा। अब आता है गीता। गीता महाभारत का एक पार्ट है जिसमें कृष्ण जी जो हैं अर्जुन के संशय का निवारण कर रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए विद्वानों का एक जो वो है विरोध, उनका कहना ये है कि युद्ध हो रहा है, हजारों लाखों करोड़ों सेना खड़ी है, 18 छिड़ियों सेना खड़ी है, और उसके बीच में बिल्कुल ये कंडीशन आ गई, और सारे उस उम्र पे 52, 56, 57 साल के थे। अगर आप देखो तो कृष्ण जी भी 52, 56 साल के थे, और अर्जुन वगैरह ये सारों की उम्र बदला अधेड़ उम्र अच्छी थी इनकी जिस समय युद्ध आया, क्योंकि 21 और 25 साल तक की तो आयु तक तो वेद अध्ययन करते थे। फिर उसके बाद इनके विवाह हुए, फिर 12-12 साल के इनके वनवास हुए, ये सब जोड़ने के उपरांत इनका 52-56 साल की उम्र का आता है। अब युद्ध तैयार खड़ा है, अर्जुन को संशय होता है, वहां पे उस संशय का निवारण होता है। इस बीच में कितना, अगर गीता के 18 अध्यायों को हम जोड़ लें और 700 कुछ श्लोकों को जोड़ लें तो आप क्या देखेंगे कितना टाइम लगता। और इतनी देर वहां बैठे हुए सारे क्या मतलब बीड़ी पी रहे, क्या कर रहे थे वहां लोग बैठे हुए कि भाई अब रेस्ट कर लो, भाई कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन को संशय हो रहा है और वो जमीन पे बैठा हुआ है और हम जो है अब जरा आराम कर लें। यहाँ तनातनी बैठी है, दुर्योधन एक सेकंड को भी तैयार नहीं है, वहां पर किस तरीके की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, ये बड़ी हास्यास्पद है। इसका मतलब है कि उसमें से संकलित करके लिखा गया। अब आता है अर्जुन को संशय। अर्जुन को किस प्रकार का संशय? अर्जुन एक प्रतीकात्मक उपयोग करा गया है कि एक मनुष्य के रूप में, क्योंकि वैसे दोनों नर नारायण हैं और दोनों सर्वसामर्थ्यशाली हैं। कृष्ण जी नारायण हैं और अर्जुन नर है, और ये दोनों परफेक्ट हैं। परफेक्ट में कोई संशय नहीं होता, ये लौकिक आचरण के लिए प्रदर्शित करी गई। तो अब ये देखो कि अर्जुन तो खुद ही जो है स्वर्ग जाता रहता था, किसी भी चीज को लेकर कभी भी चला जाओ। उसके पिताजी स्वर्ग में इंद्र थे, उसे क्या समस्या आई कि इंद्र मतलब वहां जाने में। जिसने महादेव को प्रसन्न करा हो, पाशुपात अस्त्र जो उस समय दुर्लभ था, किसी को भी पता नहीं था संसार में, वो उन्हें प्राप्त करा। और विराट पर्व में अगर आप देखें तो विराट पर्व में वो अकेला था, वहां कोई कृष्ण जी नहीं थे, वहां कृष्ण जी नहीं थे, केवल बरनल्ला बना हुआ था, उसकी शक्ति भी क्षीण है एक प्रकार से, और उसने अस्त्र उतारे और वहां पे युद्ध के मैदान में आप जो है ये देखिए कि वहां पे पूरी सेना है, कर्ण वगैरह, भीष्म, दुर्योधन और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, XYZ सारे मौजूद होने के बावजूद भी केवल 3 तीर में सारों की समस्या ही खत्म कर दी। वहां वो चाहता तो एक और मारता और कहानी समाप्त, महाभारत समाप्त, बिना उसके ही कृष्ण जी के। तो ये ऐसा लगता है कि कहीं कृष्ण की महिमा बढ़ाई गई है। अब जैसे एक सोचोगे सीधा सा है कि उस समय जिस समय ये स्थिति आई विराट पर्व में, तो वह कृष्ण खास भीष्म और द्रोणाचार्य का संवाद है, और भीष्म द्रोणाचार्य संवाद में कहती हैं कि आज देखो घोड़ों के अश्रु आ रहे हैं, ऐसी वायु चल रही है, इस अनुसार जो है 12 साल का वनवास खत्म हो गया। फिर क्या करें, सावधान। ये अर्जुन के उसका आवाज है, क्या नाम है, उसकी धनंजय जो उसका वो था, जो शंख था धनंजय, उसका आवाज है, और उसकी आवाज सुनते ही वो सब सावधान हो गया। आज कुछ भी अनिष्ट हो सकता, कुछ भी, उनका कहना ये था। और दुर्योधन को तो अहंकार था, कर्ण ने भी कही ऐसा क्या कर लेगा, आ जाओ मैदान में। देखो उसने सबसे पहले 3 बाण आए उसके
भीषम, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के चरणों में आके लगे। उसने ये देखे कि इतना क्रोध में भरा हुआ मनुष्य, संशय के ऊपर बता रहा हूं मैं, तो उसे किस प्रकार संशय हो सकता, वो इतने 12 साल के क्रोध में भरा हुआ, बचपन से क्रोध में भरा हुआ इंसान, और वहां भी पूरे पेशेंस में है। उसने पहला नमो नारायण करा, उनसे नमस्ते करी, फिर उसके बाद उसके तीनों बाण गए उनके कान के पास से। भीषम हंस के बोले कि देखो, इसका अर्थ है कि हमें नमन बड़ों को, और फिर आ जाओ मैदान में, अब मैं लड़ने के लिए तैयार। वहां ना अगर भीम है ना कोई भी नहीं है उसकी तरफ से, जितने भी उनके पार्टी के लोग थे, 5 भैया, ये सब मतलब 4 भैया और ये सब सारे थे। और वहां उन्होंने फिर जो उसको भी रोका, गायों को जाने से रोका, और फिर बाण मारकर, ये देखिए, एक सम्मोहन बाण मारा, एक सम्मोहन बाण में सारे ही जो है बेहोश कर दिए। अब ये सोचो कि अब जो हम टीवी सीरियल्स में हम देखते हैं कि उन्होंने खींचा, बाण पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, इतनी देर में आदमी पहचान लेता था कि इसका ब्रह्मास्त्र आ रहा है, इसका ये अस्त्र आ रहा है, उसको काट देते थे। लेकिन कितनी गति से उसने चलाया होगा, मतलब वो पलक झपकते ही सारे के सारे चित्त बेहोश। और जाके उसने उत्तरा से कही कि सुन भाई, इनके वस्त्र मत उतारना, सबके उतार ला, जो मतलब पट्टा पहने रहते थे, केवल ये मेरे लिए पूजनीय है, पितामह, गुरु और कृपाचार्य, बस 3 के मत उतार के लाना, बाकी सबके उतार लेना। चाहता जब ये कि और बाण मारता और सबके सब महाभारत समाप्त। अब कहां संशय, अब बताइए कहां संशय इसमें है? तो संशय कहां उपस्थित होता है? उसे ये संशय लगा उस क्षण में कि ऐसा लगता है कि मैंने दिव्य अस्त्र तो प्राप्त कर लिए और मेरे सामने ये सब पृष्ठभूमि है, मैं चाहता हूं इसे पलक झपकते मार सकता हूं सबको। लेकिन यहां पे कितने सारी चीजें जो प्रतिज्ञा हैं वो सब रह जाएंगी। भीम की प्रतिज्ञा है कि मैं अपने वध करूंगा, अपनी छाती उसका रक्त पीऊंगा, वो रह जाएगी क्योंकि मैं एक बाण में उसे भी खत्म कर दूंगा। फिर जो है ये द्रोणाचार्य हैं, ये बेशक अस्त्र नहीं रखेंगे लेकिन मैं बांध के घेर दूंगा इन्हें। भीषम मरेंगे भी नहीं तो मैं इन्हें हाथ पैर बांध के एक टाइट में डाल दूंगा, वो मरते रहो जब तक इनकी इच्छा हो, मतलब फिलहाल ये फ्री नहीं हो सकते। तो ये सब ऐसी चीजों को लेके, और अगर छेपक देखें, महाभारत में छेपक बहुत है, महाभारत के बाद के पार्ट में छेपक इतने भरे पड़े हैं कि उसमें पता ही नहीं चलता किसकी महिमा किसको उल्लंघित की जा रही है और किसकी बढ़ाई जा रही है। तो उसमें जब आप देखते हो तो उसमें ये भी प्रसंग है कृष्ण जी को एक बाण में उसने बेहोश कर दिया अर्जुन ने, कि वो उसका है प्रसंग कि भाई वो, मैं यहाँ जैसे कृष्ण जी की महिमा की बता रहा हूँ, थोड़ा सा विरोधाभास भी बताऊंगा क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि मैं एक ही पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं ये भी बताऊंगा कि असल में क्या है, असल को सुनो। ये तो अब तक तुम राधे कृष्ण प्रसंगों में, तत्वों में बहुत सुन चुके होगे और मेरा विषय आलोचना नहीं है, मैं उसका दोनों पक्ष बताऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि एक बार जो है स्त्री के ऊपर उन्होंने किसी ऋषि ने ग्रंथ लिखा, और वो जो है अर्जुन और के, जब उस समय सारे में सम्राट थे ये, और सम्राट होने के बाद में वहां पे यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ करने के बीच में और उन्होंने जो है यज्ञ किया और उसमें जो है चित्ररथ ने ऊपर से पीक कर दी और उनके रथ में वो उसमें जा पड़ा यज्ञ में, और इसलिए यज्ञ को खुले में करने को मना करा गया, निषेध किया गया कि आप खुले में ना करें, क्योंकि ऐसा कोई बीट पक्षी कुछ भी बीट कर जाए तो उससे विघ्न हो सकता है। ये वहां भी प्रसंग है। तो नतीजा उन्हें बड़ा क्रोध आया, उन्होंने राजा के उसमें गए, उन्होंने देख लिया कि किसने करा है। फिर राजा के वहां पहुंचे कि भाई राजन, तेरे राज में रह के अगर मुझे ही अस्त्र उठाने पड़े या मुझे शाप देना पड़ा तो क्या फायदा। तो कृष्ण जी का राज था, तो कृष्ण जी के राज में कृष्ण जी ने कहा ठीक है, मैं उसे जो आने वाली पूर्णमासी है उसको नष्ट कर दूंगा। बोले ठीक है, वो चले गए। अब चित्ररथ को पता चली, और चित्र जो उसने जो गंधर्वों का राजा था, तो उसने जो है फिर कही कि भाई नारद मुनि ने उस उपाय बताया। उसने कही सुनो, इस मामले में द्रौपदी तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकती है। द्रौपदी चूंकि कृष्ण की भी बहन है और उधर वो पांडवों से भी जुड़ी हुई है, और कृष्ण की जो सुभद्रा है वो भी वहां है। तो नतीजा क्या हुआ कि वो बोले फिर कैसे करें। तो उन्होंने बताया कि तू जब गंगा किसी तरीके से द्रौपदी को तैयार कर कि गंगा स्नान के लिए, कि उस दिन जो है तू गंगा स्नान करके आए, इसकी महिमा वगैरह वगैरह, और उसमें जो है जब मैं जाऊंगी और मैं स्त्री बन के रहूंगी और मैं उसे जरा पट्टा पढ़ाऊंगी तो तू जो है वचन मत भरना। खैर वो ऐसी प्रसंग हुआ, नारद मुनि ने जो है उन्हें तुम्हारा द्रौपदी को इस संबंध में तैयार करा। द्रौपदी नहाने गई, बीच में उसने स्त्रियों का समूह देखा रोते हुए, उसे लगा कि मैं महारानी हो गए, मेरे राज्य में कौन स्त्रियां जो है इस तरीके की रोग आ रही हैं। तो उसको देखकर उसने वहां पे पहुंची, दासी भेजी, उन्होंने कही तेरे बस की नहीं है। उन्होंने कहा हमारी महारानी है द्रौपदी। उसने कहा उसके भी बस की नहीं है मेरी समस्या का समाधान, बड़ा है, इनको चोट लगी। द्रौपदी वहां पहुंची
उसने कि बताओ, बोले जब मैं समस्या का समाधान बताऊंगी जब तू मेरे वचन भर देगी, मेरी समस्या का समाधान, उनके वचन बता। मैंने वचन भर दिया। भाई एक तरफ मेरे कृष्ण है और एक तरफ अर्जुन और हमारे ये सारे हुए, त्रिलोक में तो कोई है नहीं हमारी समानता को टक्कर देने वाला। तो उसने की समस्या है ये, अब उन्होंने बता दी कि ऐसे बीट हुई और ऋषि ने ऐसे कहा और उसके बदले में कृष्ण जी ने मारने के लिए मुझे इस आज के दिन निश्चित कर दिया है। अब वो फंस गई, वो बल्कि नहाना तो छोड़ो, उसने वापस आ गई और उसने वो रंग महल में पड़ गई। उसे देख के और सबने कही, फिर अर्जुन ने कही, बोले कोई बात नहीं हम बात करते हैं। जाके कृष्ण जी के पास पहुंचे, कृष्ण जी से उस समस्या का बताया। कृष्ण जी भी बोले कि भाई मैं भी वचन में हूं और नहीं हो सकता। बोले महाराज ये कैसे हो सके, मेरी पत्नी का वचन है और तुम्हारा, तो कुल मिला के दरबार ये हो गया, अखाड़ा खिंच गया। वहां पे दोनों आमने सामने आ गए, अर्जुन भी सामने आ गया और कृष्ण जी भी सामने आ गए। जर्नल कृष्ण उन्होंने अर्जुन ने कही भगवान मैं वैसा पूजनीय हो और मैं अस्त्र नहीं चलाना चाहता। उसने नहीं, प्रारंभ करो। एक बाण मारा और कृष्ण जी चित्त, फिर उसके बाद में दूसरा मारा, फिर चित्त, तीसरा मारा कृष्ण जी में, उधर खटा नहीं अर्जुन का बाण। और ये देखिए फिर उसके बाद में उन्होंने सुदर्शन क्रोध में उठाकर सुदर्शन चला दिया। सुदर्शन चलते ही उन्होंने जो है उठाकर सुदर्शन का, भाई सुदर्शन तो है ही जिसको मारे वगैरह आता नहीं, तो उसने तुरंत पाशुपात अस्त्र करा, क्योंकि उसके समकालीन शिवजी ही लड़ सकते थे। शिवजी का जो है पाशुपास्त्र चला दिया। अब दो सामने आके खड़े हो गए, ना वो हारे ना वो हारे। तो फिर जो है सारे ब्रह्मा विष्णु महेश जो उस समय थे और देवता वो आके खड़े हो गए। बोले भाई तुम ऐसा नहीं है, तुम दो ही बचोगे, बाकी प्रलय खड़ी हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा, तुम और नर नारायण दोनों हो, लड़ाई हो, मतलब इसे बंद करो। उसने कही फिर क्या करें। तो फिर वो जो ऋषि थे उन्हें बुलाया गया। अरे भाई तू स्त्री के संबंध में ग्रंथ लिख रहा था, स्त्री की महिमा के विषय में ग्रंथ लिख रहा था, तो तुझे ये करना चाहिए कि अपने शाप, ये अब यहाँ तेरी स्त्री की वजह से ही, तो तेरी गलत प्रतिज्ञा की वजह से ही तो स्त्री का वचन झूठा सिद्ध हो रहा, तो तुझे अब स्त्री की महिमा रखनी है या स्त्री का वचन झूठा करना है। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी समझ में आ गई और मैं इसमें वापस लेता हूँ, और ठीक है यज्ञ में इस तरीके का अनुष्ठान हो गया, मुझे इस तरीके का दंड नहीं देना चाहिए था। तो फिर उन्होंने बार बार अर्जुन जाएं, छींटा मार के आए, कृष्ण जी को मूर्छा से उठाएं, फिर दोनों ने अपने अपने अस्त्र वापस ले लिए। अब ये प्रसंग इस तरीके का है, बहुत से कृष्ण पंथी जो है इस पर हल्ला मचाएंगे, लेकिन ये महाभारत का प्रसंग है, जाके देख लेना उसमें। और दूसरा आता है उस काल में, मैं पहले से एक तर्क प्रधान व्यक्ति हूं और मेरा ऐसा नहीं कि योगी हूं, तो योगी का विषय देखिए, योग में ईश्वर से भी इम्प्रेस होना नहीं सिखाया जाता। उसका कहना है कि अगर आप ईश्वर से भी इम्प्रेस होते हो, किसी भी को भी मान लोगे 100%, और उसमें जब आप ध्यान करोगे तो 99 रहोगे। सबने आखिर लास्ट में जो तथाकथित ईश्वर की परिकल्पना दी गई है उसको त्यागा, और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने आत्म साक्षात्कार करा। इसलिए बाद के काल में देखिए रामचंद्र जी ने किसी ईश्वर की बात नहीं करी पीछे की, कृष्ण जी ने किसी ईश्वर की बात नहीं करी, उसने ईश्वर का खंडन करा। ये गीता है, कर्मवाद को उन्होंने दिया। जो अभी बहन पूछा कि भाई कर्मवाद क्या है, तो गीता में, और जो गीता में एक वो भी विषय बताऊंगा मैं, तो उन्होंने उस कर्मवाद को यहाँ, और ऐसी महावीर स्वामी ने करा और ऐसी माधव ने, सब ने वेद और वेदांत और सारी चीजों से पार गए। क्योंकि पार जाने का विषय क्या है, आत्म ध्यान, आत्म साक्षात्कार। उसमें न किसी कृष्ण जी की आराधना करनी होती है, न किसी रामचंद्र जी की, न शिव जी की, न किसी और की, क्योंकि किसी और से आप केवल फॉलोअर रहोगे, आत्ममुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ वेदांतिक जो वाक्य है एम ब्रह्मास्मि, और उससे आगामी जो हमारे मिशन का है एम सत्यास्मि, अर्थात मैं ही सत्य हूं। तो वही आ गया प्रसंग कि वेद व्यासु कैसे इतने आत्म साक्षात्कार के बाद जो सर्वोच्च अवस्था है, किस प्रकार से उसे संशय और हो गया, और वही संशय उन्होंने अर्जुन का रखा। तो ये एक प्रकार का संशय नहीं है, वहां संशय किसी भी प्रकार का नहीं है, एक आम मनुष्य के लिए दिया गया है। क्योंकि हम कोई जब लिखते हैं कोई कथा, तो उसमें माना, जैसे सवाल हल करेंगे तो एक प्रश्न होता है और एक माना की कै होता है। तो माना की कै और एक प्रश्न, तो वह माना की कै से हमारा समस्या का समाधान हो जाए। तो माना की कै तो कृष्ण जी हो गए, कै पे कृष्ण जी है, कै पे कृष्ण, और फिर जो है अर्जुन हो गया प्रश्न। ये सब है, कुल मिला के ये तो बात ये रही। और अब विषय आता है, जैसे मैं और थोड़ा सा उस पर कहूँगा कि कृष्ण जी की बाल्यावस्था में, आज ये आषाढ़ में इसमें पैदा हुए वो, और अकेले ऐसे भगवान हैं जो अष्टमी को पैदा हुए, पूर्णमासी को भी नहीं, अष्टमी को पैदा हुए, और तुम्हारा वो भी अंधियारे पक्ष में, मतलब अंधियारे पक्ष क्या है, अज्ञान को मिटाने वाले। अष्टमी क्या है, जो भी संसार में 8 प्रकार की काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या द्वेष वगैरह ये जितनी भी हैं, इनके मिटाने वाले, इनके संशोधन करने वाले भगवान कृष्ण हैं।
और उनकी बाल्यावस्था में भी है कि वो उस तरीके से उसमें, अगर देखिए यहाँ भी कंस के विषय में कि कंस जो है त्रिकाल वो था, त्रिलोक विजयी था, तो सवाल ये आता है कि भाई त्रिलोक विजय कैसे हो जाएगा? उस समय तो भीष्म और पांडु और ये सम्राट थे सारे, और मथुरा और वृंदावन बहुत छोटे से गांव थे, या मथुरा और वृंदावन बहुत छोटा सा एरिया था। तो पहले तो एक सीधी सी जिन्होंने राजसूय यज्ञ किए, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने का तात्पर्य क्या होता? कोई भी उसका विरोधी राजा विरोध में नहीं आ सकता, वो या तो मित्रता व्यवहार करेगा या पराजय स्वीकार करेगा। और वहां कंस जो है, वहां कंस की महिमा है, वहां अर्जुन वगैरह और ये मतलब जो तुम्हारा ये पांडु और भीष्म ये तो कहीं दिखाई न गए। तो ये थे, ये सम्राट थे, उसमें एक ये जर्नल राजा है उस काल में, और जितनी बड़ी बड़ी पूतना और जितनी बड़ी दिखाई गई हैं ये उतने के ऊपर जो अगर ये गिरती उतने काल पे तो ये खुद मथुरा वृंदावन को सारे को ढक लेती। तो ये ऐसा लगता है परिकल्पना। जब हम विषय पे विचार करते हैं तो भक्ति से हटकर अभिभक्ति पर प्रकट हो जाते हैं हमारे मन में। आज देखो पढ़ा लिखा तबका है, इस समय पढ़ा लिखा विचारधारा का है, और नई लड़कियां स्त्रियां सारी पढ़ती हैं। अब आप ये सोच लो कि भाई नहीं कान ढक लो, मुंह ढक लो और आंख ढक लो कि भाई नहीं नहीं हमें तो जो है कुछ सोचना ही नहीं है, भगवान भगवान है। तो ऐसे भगवान क्या, भगवान का आप गलत तरीके से अर्थ व्याख्या कर रहे हैं, तो ये व्याख्या मान्य नहीं होती है। और ये तो कृष्ण जी जन्मे, प्रेडिक्शंस करके जन्मे। देखिए एक उसने अभी बहन ने पूछा कि जो है वेद उसमें गीता में सबसे पहले एक लिखा गया है, ये चीज घोषणा की गई है मैं श्री कृष्ण, मतलब ऐसे उन्होंने इस तरीके का नहीं है मैं कृष्ण वगैरह, उन्होंने सीधा मैं वासुदेव, वासुदेव का उपलब्ध है, और सही मायने पर तो वो मैं का ही उपलब्ध है। मैं जो कोई नाम विहीन है, मैं स्त्री भी हो सकता, मैं पुरुष भी हो सकता। और मैं की व्याख्या भी बहुत गहरी है। मैं में 3 चीजें आती हैं, मैं, ए और अंग, अर्थात स्त्री पुरुष, बीज इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, एक्स वाई और बीज, ये मैं है। मैं लिंग भी है और अलिंग भी है। इसलिए सभी ने योगियों ने इस विषय को डाला कि भाई मैं अपनी प्रकृति को अपने वशीभूत करके आजन्मा और स्वजन्मा हूं, और इन्हें उसमें प्रमाणित करा है। जब इसमें है कि उन्होंने जैसे कंस के लिए, कंस के अत्याचारों से मुक्ति के लिए, जैसा कि उसमें दिखाया, तो कंस के अत्याचारों से मुक्ति के लिए उन्होंने खुलेआम एक प्रेडिक्शंस करी। जब वो उनके माँ बाप विदाई समारोह हो रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि मैं आ रहा हूं 8वें वसु के रूप में, और मैं जो है तुझे मार दूंगा। इसको लेकर उन्होंने अब उस पर वो डर गया कि भाई ये क्या कोई भी होगा, किसी भी मृत्यु के विषय में बता दो तो वो डर जाएगा। तो उन्होंने फिर क्या काम करा कि उन्हें उठाकर सारे बहर महरोई, जबकि उनसे बहुत प्यार करता था कंस, और उन्हें कैद में डाल दिया। वो राजनीतिक कैद थी, ना कि उन्हें हाथ पैर बेड़ियां डाली गई या कुछ। अगर बेड़ियां डाली जाती या एक तर्क खड़ा हो जाता है, अगर उसे लगता है कि भाई कोई संतान, भाई वो पढ़ा लिखा था, ज्ञानी था, और उसकी खुद की पत्नी और गृहस्थी था, तो चाहता तो वासुदेव को डालता एक कोने में और तुम्हारा देवकी को डालता एक कोने में। अब कर लो संतान, जब संतान होगी ना तो फिर कृष्ण आएंगे ही ना है। और फिर चलो कृष्ण जी आए, ये सब कर दिया। इसका मतलब वहां क्या है, वहां आराम से, और मिल भी देता तो उसे डालता जेल के एक कोने पे। अब जब संभोग होता ही नहीं तो फिर कैसे कौन सी चीज आ जाती। और फिर अगर इस तरीके का होता भी है तो फिर किस तरीके का होता है कि इसका मतलब वहां स्वेच्छित थी, उसने कही ठीक है, उसे नहीं डरता है, उसने कही भाई ठीक है मारो, आ जाओ देखो कौन मारता है मुझे। ये अहंकार दिखाया गया। नतीजा क्या हुआ कि वो 8 पैदा हुए। लेकिन अगर इसमें भी हम देखें तो जो वो अपने हाथ से हत्या करता था, पटक के मार देता था, तो वैसे ही जो है अबॉर्शन हो जाएगा महिला का। उसे तो डर के मारे ये लगेगा कि भाई ऐसी स्थिति में मैं कैसे संतान कर लूं, अगली तो करेगी नहीं, दोनों ही न करने के। चलो फिर आगे कृष्ण जी। अब कृष्ण जी का जन्म वहां देखिए, यहाँ पे जो मैंने कहा कि वो अपनी स्वयं प्रकृति से जन्मे, अपनी प्रकृति को अधीन करके। तो कैसे जन्मे कि विष्णु भगवान के रूप में, मतलब जो भी कोई एक पुरुष आकृति वहां उत्पन्न हुई, प्रकाशित हुई, और उसने देवकी को देखते हुए कहा कि मैं अब तेरे गर्भ में आ रहा हूं। तो ऐसा कहने के उपरांत में देवकी मूर्छित हो गई और वो उनके घर में प्रवेश कर गए। अब यहां भी एक और यौगिक रहस्य है कि उसमें यौगिक रहस्य किस प्रकार का, क्योंकि उससे पहले पिंड किसका तैयार हो रहा, बिना आत्मा के, आत्मा संस्कार के साथ पहले गर्भ में चली जाती है, उसको लेकर सारा हमारा, क्योंकि आत्मा से मन, इच्छा, और इच्छा को लेकर सारे कर्म, और कर्म से शरीर निर्माण, और शरीर निर्माण के बाद सारा कुछ होता। इसका मतलब जब वहां आत्मा ही नहीं है उसके अंदर, तो फिर किस वजह से चीज शरीर का निर्माण हो रहा। तो इसका मतलब वहां कौन था, तो वही थे क्या नाम उनका, जिन्होंने हमारा सृष्टि निर्माण करी है।
तो सार में उन्होंने उसको शरीर में भेजा और उन्होंने उसका शरीर निर्माण करा। जब निर्माण का समय आ गया, कृष्ण जी को बता दी, वो विष्णु भगवान को बता दी या सत्यनारायण को बता दी कि मैं अब भगवान आप आ जाओ और अब जो है आप इसमें वो करें। तो उन्होंने उसी समय आए और उसके शरीर में प्रवेश कर गए। तो क्योंकि यहाँ एक विषय मैं पहले भी कह चुका हूँ इस विषय में कि अगर योगी अपनी आमतौर पे बीज से जन्म लेता तो फिर तपस्या करनी पड़ जाएगी। तपस्या करने के उपरांत अपने को शुद्ध करेगा, जो माता पिता से मिले हुए, प्रकृति से जो मिले हुए उसे कर्म संस्कार हैं, जो बंधन हैं, उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। नतीजा उसका बहुत समय इसी में चला जाएगा। इसलिए वो क्या काम करती वहां है कि अपनी प्रकृति को अपने वशीभूत करके वो स्वयं जन्माए, अर्थात अब वो एंट्री कर गए और उन्होंने वो जो चीज है बनाई, मतलब अपना शरीर धारण कर लिया। अब उसमें देखेंगे कि आप जो है उसमें अब उन्होंने नाल किससे काटी? माँ ने काटी, बाप ने काटी, वो तो बेहोश पड़ी है। इस पर कृष्ण जी ने अपने आप ही बालपन में निकाल के काट के अपनी माँ के अंदर करी, पिता के अंदर करी, अपने अंदर करी और चले आए। अब संदेश भेज दिया और चले आए। फिर उसके बाद सारी लोकलीला, बहुत सारी खैर ऐसी बातें हैं जिसका मेरा उद्देश्य यहाँ श्री कृष्ण भगवान की महिमा मंडित करना नहीं है। उनका मूल पक्ष है गीता। आप उसको पढ़िए, उसका कर्मवाद को पढ़िए। राधा कृष्ण पर जैसे कही, राधा कृष्ण क्योंकि मेरा स्त्री मिशन है और स्त्री मिशन में मैंने बताया ये सब पुरुष प्रधानता है। पुरुष प्रधानता में क्या है? एक्स वाई जो भी कही, वो कृष्ण के अंदर जो, जैसे मैं हूं, मेरा नाम सतेंद्र है, तो मेरे सतेंद्र में एक एक्स है एक वाई है। अगर मैं कृष्ण हूं मान लो, तो मेरे अंदर एक तो कृष्ण हो गया जो मेरा पुरुष शरीर है, और एक मेरे उसको एक्स को क्या कहेंगे? इसलिए उन्होंने वहां उसका नाम रखा राधा। नहीं तो यहां से कोई प्रसंग सेट नहीं होता। तो ये कुल मिलाकर श्री कृष्ण की ही आराधना है, ये पुरुष आराधना हुई। और मैं एक और छोटी सी बात कहूंगा कि भाई प्रेम प्रसंग में, ये मैं पहले भी कह चुका हूं दिव्य प्रेम प्रसंग में, कि पत्नी की महिमा है समाज में। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो ऐसा लगेगा कि पत्नी की महिमा घट रही है और प्रेयसी की महिमा बढ़ रही है। अर्थात प्रेयसी को हमें पूजना चाहिए और पत्नी को नहीं। तो हम समाज में सीख क्या रहे हैं? तो मैं कृष्ण भगवान के जन्मदिन के आज के उपलक्ष्य में हमें जो ये मटका वगैरह, डांडिया वगैरह ये सब होता है, ये उत्सव है, उत्सव मनाते हैं। उस उत्सव के माध्यम से सामूहिक होता है, सामूहिक रूप से हमें प्रेम करना सीखता है। प्रेम की परिभाषा आती है, प्रेम की परिभाषा है आत्मा की अपनी ध्यान करिए, वो गीता का विषय है, अपनी आत्मा को जानो, योगी बनो। योगी बनने पर आपको अपनी आत्मा ज्ञान होगा, आपको मुक्ति का ज्ञान होगा और आप भगवान कृष्ण के सही स्वरूप को प्रकट कर पाएंगे। यही भगवान के प्रति हमारी स्तुति है और यही भगवान को हमारा एक नमन है। जय सत्यम सिद्धानम, जय कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्री सत्य साहिब स्वामी सतेंद्र जी महाराज की संस्था द्वारा संचालित स्कूल में आज काफी रंगारंग प्रोग्राम हुआ। आप तस्वीरों में देखें कि बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों की खुशी देखते ही बन रही है। बच्चों ने रंगोली बनाई। इसके अलावा अगर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तो बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, कृष्ण भगवान के गीत गा रहे हैं और उस पर नृत्य भी कर रहे हैं। ये स्कूल सत्याश्वी मिशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। सत्याश्वी मिशन वही है जिसे श्री सत्य साहिब स्वामी सतेंद्र जी महाराज ने बनाया।